isomer and isomerism. Here, first of all, we discuss about the what is meant by isomer. The compound which have same molecular formula. The compound which have same molecular formula, that is it is also said to be the empirical formula. In so many books, for this word there is a written as a empirical formula, chemical formula. Okay, the compound which have same molecular formula but different spatial arrangement of atom. That is in three-dimensional space. There is a difference in the arrangement of atom, are said to be the different spatial arrangement of atom, so that it has different physical and chemical properties. That is, the arrangement of atom is effect to the physical and chemical properties of the coordination compound which have same molecular formula. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है, तो जो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और जो मॉलिक्यूल्स है वही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे. दैट इज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. The compound which have same molecular formula but different in the arrangement of atom. That is, the particular जो ligands है, it is attached to the central metal atom by various types of arrangement, so that it is said to be the different spatial arrangement in the three-dimensional space. In the three-dimensional space of arrangement of atom, so that it has physical and changes in the chemical properties. That is, arrangement affect to the physical and chemical properties, like physical properties like boiling point, melting point, density, viscosity, okay, refractive index, surface tension. This such type of properties is affected by the isomerism, and this phenomenon exhibited by the compound is said to be the isomerism. That is, isomer to isomerism. The compound which show this property are said to be the isomerism, where the compound which have same molecular formula, same empirical formula, same chemical formula, but different in the arrangement of atom in the three-dimensional space, which affect the physical and chemical properties. That is the both properties of the compound. Let us see the classification of isomerism. यहाँ पे हम classification देखेंगे particular isomerism का. यहाँ पे isomerism are classified into two types. Isomerism are classified into two types. That is the structural isomerism. That is the structural isomerism and stereoisomerism. The structural isomerism are depend on the structure of atom. Depend on the structure of atom. And stereoisomerism is depend on three-dimensional structure or three-dimensional arrangement of atom with the central metal atom. The structural isomerism is also called as constitutional isomerism, and stereoisomerism are said to be configurational isomerism. That is, there are different names to the structural isomerism and stereoisomerism. The structural isomerism is depend on the changes in the structure of coordination compound. This is also called as the constitutional isomerism, and second one is the stereoisomerism, where it is also said to be the configurational isomerism, which depend on the three-dimensional structure of or arrangement of atom to the central metal atom. That is, ligands are arranged to the metal atom, to the central metal atom by various ways in three-dimensional space. That is, this structural, today we are going to discuss about the first type of isomerism, that is the structural isomerism. The structural isomerism is, there are four different types of structural isomerism: ionization isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism. First is the ionization isomerism. Second one is the hydrate. That is, hydrate isomerism is also called as solvent isomerism. Hydrate isomerism is also called as solvent isomerism. Number third one is the coordination isomerism.
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. नंबर 4 इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म. दैट इज यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एंड नंबर 4 इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म. और यहाँ पे जो सेकंड टाइप देखा है हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, which is also called as the configurational isomerism, which is classified. Stereo isomerism are classified into 2 types. That is the geometrical isomerism and optical isomerism. The geometrical isomerism is also called as diastereo isomerism. Diastereo isomer, and the phenomenon is called as isomerism. And optical isomerism is also called as enantiomer. Enantiomer or enantiomerism. That is the here optical isomerism and geometrical isomerism. There are this is both 2 types is the stereo isomerism, and here ionization, hydrate, coordination and linkage isomerism including the different in the structure of compounds within the coordination sphere or ionization sphere. यहाँ पे अब ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आइसोमेरिज्म का. यहाँ पे हम पहला जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे. तो पहला जो बताया है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दैट इज व्हेन वी ऐड द कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, देयर इज आयोनाइजेशन इज टेक्स प्लेस बिकॉज़ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन cationic species and one anionic species. In this compound the complex cation is present here. This coordination entity is the complex cation, that is the cation ion. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको पता है कितना होगा बाद में देखेंगे. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम नहीं. और जो सल्फेट आयन है इट इज एक्ट एज अ काउंटर आयन, इट एक्ट एज अ काउंटर आयन. अब इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, दैट इज मेटल एटम एंड amine and bromo. These are groups are present inside the coordination sphere, so that it is considered as a coordination sphere. Number second is the ionization sphere. Ionization sphere में कौन सा है? Counter ion. It is simple anion. It is simple anion. It is said to be the counter ion, and counter ion is considered as ionization sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपको पता ही है, जो बाहर है इट इज कंसीडर्ड एज काउंटर आयन, और काउंटर आयन जो रहता है इट इज आयोनाइजेबल स्पेसिस. अगर आपने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो आपको यहाँ पे 2 आयन मिलेंगे, एक कैटायन मिलेगा और एक आयन मिलेगा. सल्फेट का आयन मिलेगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका कैटायन मिलेगा, बराबर. तो दिस सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सेड टू बी द, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड जो बाहर है जो काउंटर आयन है वो कैटायन रहो आयन रहो कुछ भी रहो, ठीक है. तो वो क्या रहेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर. वो क्या रहेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर. ओके. अब यहाँ पे जो सेकंड कंपाउंड है, अब दोनों का डिफरेंस आपको देखना है. ये सेम कंपाउंड है, दैट इज CONA3/5. खाली सल्फेट अंदर आया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और जो ब्रोमीन था पहले कंपाउंड में इसको हम A कहेंगे और एक सेकंड टाइप को B कहेंगे. जो A टाइप में था जो सल्फेट आयन था ये टाइप एज अ काउंटर आयन. बट इन सेकंड केस इन B coordination compound what happened? The sulfate ion present inside the coordination sphere, but the bromine atom present outside the coordination sphere. That is here the bromine act as the ionization sphere, and in first case the sulfate ion act as a ionization sphere. बाकी तो सेम है, कोऑर्डिनेशन अमाइन और जो कोबाल्ट था वो सेम रहेगा. खाली क्या हुआ यहाँ पे सल्फेट आयन एक्ट एज आयोनाइजेशन स्फीयर और सेकंड केस में Br एक्ट एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. पहले केस में Br अंदर था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और सेकंड केस में क्या है? सल्फेट आयन कहाँ पे है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. तो क्या होगा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेक्स प्लेस, exchange of libraries takes place. That is the exchange. exchange बोलेंगे, rearrangement भी बोल सकते हैं. rearrangement
rearrangement of ligand, exchange of ligand is takes place between the coordination sphere and ionization sphere. क्या हुआ, खाली यहाँ पे exchange of ion take place और rearrangement हो रहा है, बाकी का कुछ बदल नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। आप डिफाइन कर सकते हैं the in ionization sphere what happen, the exchange or rearrangement of ligands are takes place or rearrangement of ionization sphere are takes place between the coordination entity or coordination sphere. This such a type of isomerism are called as ionization isomerism. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे जो पहला कंपाउंड था जहाँ पे सल्फेट आयन बाहर था कोऑर्डिनेशन के स्फीयर में, it acts as a ionization sphere counter ion, it is red violet in color, it is red violet in color, जो कलर था that is pentamine bromo cobalt, okay cobaltate, तो उसका जो कलर था it is red violet in color, but जब सल्फेट आयन कहाँ पे आ गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, तब क्या हो गया, और ब्रोमीन बाहर चला गया, तब ब्रोमीन कहाँ चला गया, बाहर चला गया, और तब दिस कंपाउंड शो रेड कलर इन रेड कलर, दैट इज दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ रेड कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे जो कलर था वो इस कंपाउंड का बदल गया ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, एंड ड्यू टू this such phenomenon are said to be the ionization and it is said to be the ionization isomerism. आपको समझ में आ गया, खाली यहाँ पे यार एक बात याद रखना है, खाली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, and due to rearrangement there is a change in the properties of coordination compound is takes place. Number second is the hydride isomerism. Number second is the hydride isomerism, and hydride isomerism is also called as solvent isomerism. इसको आप क्या बोलेंगे, solvent isomerism. एक बात यहाँ पे आप बता सकते कि पहले यहाँ पे जाने से पहले जो ये कंपाउंड है, अगर हमने इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट कर दिया, the precipitate that is PPT, in short it is said to be the PPT, precipitate, एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, that is बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ BaCl2। अगर हमको पता करना है कि सल्फेट आयन बाहर है या Br आयन बाहर है, आप कैसे पता करेंगे, आपको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं बिटवीन द BaCl2 एंड दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन हो गई और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट, दैट इज इन शॉर्ट इट इज सेड टू बी द PPT, इट गिव्स बेरियम सल्फेट, इट इज व्हाइट इन कलर, बराबर है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन इट इज रिएक्ट विद BaCl2। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो हम समझेंगे वहां पे जो सल्फेट आयन है वो कहां पे होगा, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, ओके। अगर सेकंड केस में अगर वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ, अगर हमने यहाँ पे AgNO3 ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर कौन सा टाइप का आयन है हमको पता लगाने के लिए हम ऐसे रिएक्शन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे AgNO3 के साथ क्या होगा, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विद हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद this Br ion to form AgBr, that is silver bromide is formed, and when this silver bromide is formed it gives precipitate। क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन कौन सा प्रेजेंट है, Br आयन प्रेजेंट है, बट नॉट द सल्फेट आयन, और वो सल्फेट आयन बाहर है, क्या अंदर हो जाएगा, समझ में। ऐसे रिएक्शन करके भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आयन, कौन से टाइप का आयन बाहर है, दैट इज इन आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे।
इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे क्या, दिस बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आर जनरली सेम। बस यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, खाली यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल द रीअरेंजमेंट और एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द वाटर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। जो वाटर प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, वो अंदर है, कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। आपने यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में देखिए, इसको भी नाम देंगे, ए नाम, बी, या इसको सी देंगे और इसको बी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर। अब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द वाटर मॉलिक्यूल एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर। द आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन सा भी मॉलिक्यूल रहे, लेकिन एक्सचेंज क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, दैट इज एक्वा मॉलिक्यूल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे पहले कंपाउंड में देखिए, यहाँ पे जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, हेक्सा एक्वा क्रोमेट, हेक्सा एक्वा क्रोमेट। अब यहाँ पे जो काउंटर आयन है, क्लोराइड, दैट इज क्लोराइड एक्ट एज अ काउंटर आयन, क्लोराइड एक्ट एज अ काउंटर आयन एंड व्हिच इज वायलेट इन कलर। यहाँ पे जो आपको हेक्सा एक्वा क्रोमेट आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन है, क्लोराइड आयन, व्हिच इज वायलेट इन कलर। अब आपको यहाँ पे कलर कौन सा दिख रहा है, वायलेट। अगर आपको पता लगाना है कि कितने मॉलिक्यूल्स आप क्लोराइड बाहर है, आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन करना पड़ेगा बिटवीन द AgNO3 एंड दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, AgCl के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए व्हेन वी रिएक्ट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बाहर थे आयोनाइजेशन स्फीयर में, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड आर प्रेजेंट आउटसाइड द आयोनाइजेशन स्फीयर और दिस बोथ ऑल क्लोराइड आयन आर रिएक्ट विद AgNO3, that is 3 molecules of chloride reacts with 3 molecules of AgNO3, so that 3 molecules of silver chloride is formed. On that basis we say that the 3 chloride ion present outside the coordination sphere and there is absence of water molecule outside the coordination sphere. When we react with this compound with H2SO4, there is no loss of water which takes place when we react this coordination compound with कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा बोला, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन कर दी तो यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं होगा, बट व्हेन वी रिएक्ट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद AgNO3 देयर इज अ लॉस ऑफ 3 chloride ion is takes place and there is the formation of 3 molecules of silver chloride. That's where we say that there is absence of water molecule in outside the coordination sphere and this coordination complex is generally violet in color. अब सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, पेंटा एक्वा क्रोमेट क्लोराइड। अब क्या हो गया, एक क्लोराइड आयन अंदर आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चला गया एंड फॉर्म हाइड्रेट मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पता लगाना है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिएक्ट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। There is loss of one water molecule is takes place. There is a loss of one water molecule is takes place. From that basis we say that there is a one water is takes place outside the coordination sphere, and also when we react this compound with AgNO3, there is a loss of only 2 chloride ion is takes place. यहाँ पे 3 हो गया था, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया और एक क्लोराइड आयन कहाँ पे चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया। एंड दिस कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्लू ग्रीन इन कलर। कौन सा कलर का होगा, ब्लूइश ग्रीन इन
कलर। देन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए थे AgCl के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। यहाँ पे AgCl के कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का कंपाउंड देखिए आप टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमेट। अब ये यहाँ पे क्या हो गए 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज इन आयोनाइजेशन स्फीयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। कैसे पता लगा? जब हम उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे H2SO4 के साथ। देयर इज अ लॉस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टेक पे। कितने मॉलिक्यूल लॉस होंगे 2 मॉलिक्यूल लॉस होंगे। अगर हमने उसके AgNO3 के साथ रिएक्शन कर दी कितने AgCl फॉर्म होंगे? खाली यहाँ पे एक ही AgCl फॉर्म होगा। कितने फॉर्म होगा एक ही AgCl फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर खाली एक ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अरे यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं था, यहाँ पे एक अंदर चला गया, यहाँ पे 2 चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्लोराइड आयन क्या कर रहा है कि एक वाटर जैसे ही एक क्लोराइड आयन अंदर आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, एक वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, दैट इज इन द आयोनाइजेशन स्फीयर एंड फॉर्म हाइड्रेट। That's why it is said to be the hydrate isomerism, where the rearrangement of water or exchange of water molecules takes place between the ionization sphere and coordination sphere। अब लास्ट का देखिए, ये इसका जो कलर था, ये जो 3rd नंबर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट इज डार्क ग्रीन इन कलर। पहला कौन सा था वायलेट, दूसरा कौन सा था ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, और तीसरा कैसा है डार्क ग्रीन इन कलर। अब यहाँ पे 4थे नंबर का कंपाउंड देखिए ट्राइएक्वा ट्राइक्लोरोक्रोमेट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, दैट इज ऑल क्लोराइड आयन प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कैसे पता चला? व्हेन वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद AgNO3 there is no any formation, there is no any reaction due PPT of AgCl। कोई भी वहां पे पीपीटी आपको नहीं मिलेगी सिल्वर क्लोराइड की, क्योंकि ऑल क्लोराइड आयन कहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर चले गए। और अगर हमने इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दी, ठीक है, तो क्या होगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट व्हेन वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। कितने 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहे। यहाँ पे 0 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गए, यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गए, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गए। यहाँ पे आपका कितने क्लोराइड आयन फॉर्म हो गए थे सिल्वर क्लोराइड के, यहाँ पे 3 सिल्वर क्लोराइड आयन फॉर्म, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 2 1 0। अब अगर इसका हमने क्लोराइड आयन के इस फॉर्म में रेशियो लिख दिया तो क्या आएगा 3:2:1:0। This is the ratio of formation of chloride ion between this coordination compound with silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट के साथ यहाँ पे 3:1:0 क्लोराइड आयंस फॉर्म। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो कैसा आएगा 0:1:2:3 for the H2O molecule and for this chloride ion। समझ में? अब ये कंपाउंड कौन से कलर का होगा येलोइश ग्रीन इन कलर, दैट इज येलोइश ग्रीन इन कलर। पहला था वायलेट, दूसरा था ब्लू ग्रीन, तीसरा था डार्क ग्रीन, चौथा कैसा होगा वहां पे येलो ग्रीन होगा जहां पे कोई भी क्लोराइड आयन बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट नहीं है। ऑल क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हो गए, एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। both are isomerism are same where the rearrangement or exchange of ions take place। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है खाली वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पे तीसरे टाइप का आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरे टाइप का जो आइसोमेरिज्म हमने देखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड टाइप का है इट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नाम में ही सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स आर टेक्स प्लेस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर यहाँ पे नहीं है। पहले बोथ आइसोमर में क्या थे आयोनाइजेशन और हाइब्रिड आइसोमर में यहाँ पे क्या हो रहा था एक्सचेंज हो रहा था बिटवीन द आयोनाइजेशन स्फीयर एंड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि वहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट था, काउंटर आयन प्रेजेंट था बोथ केसेस में। लेकिन यहाँ पे काउंटर आयन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, यहाँ पे काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे खाली दो टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। पहला जो एग्जांपल बताया ए, सेकंड बी, पहला ए फॉर्म का देखेंगे हम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हेक्सामाइन कोबाल्ट है, हेक्सामाइन कोबाल्ट है। ओके, और यहाँ पे कौन सा है? हेक्सासाइनोक्रोमियम, हेक्सासाइनोक्रोमियम। This is the positively charged cation and this is the negatively charged anion, so that this compound is neutral in nature. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिखता है कि सेकंड केस में जो दिया है द क्रोम, यहाँ पे पहले केस में क्रोमियम के साथ कौन था? साइनो ग्रुप था। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन सा ग्रुप था? NH3 था, which is neutral in nature। यहाँ पे आपको क्रोमियम के साथ कौन सा लाइगेंड दिख रहा है? NH3 दिख रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको कोबाल्ट के साथ कौन सा दिख रहा है? साइनाइड। यानी कि क्या, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है, यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन सा है? साइनाइड ग्रुप है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ NH3 ग्रुप है। पहले इसमें कोबाल्ट एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और क्रोमियम एक्ट एज नेगेटिवली चार्ज आयन। सेकंड केस में क्रोमियम एक्ट एज अ कैटायन एंड कोबाल्ट एक्ट एज अ एनायन, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज स्फीयर। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं, नहीं तो खाली मेटल आयन बात करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्फीयर है नेगेटिव चार्ज, ये जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्फीयर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पहले केस में कोबाल्ट पॉजिटिव था, सेकंड केस में कोबाल्ट नेगेटिव हो गया जो स्फीयर है। ये पहले केस में क्रोमियम नेगेटिव था, सेकंड केस में क्रोमियम पॉजिटिव बन गया। और क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज एंड रीअरेंजमेंट। और जो पे जहां पे रीअरेंजमेंट एंड री एक्सचेंज होता है उसको बोल रहे हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और constitutional isomerism, where the exchange of ligand takes place between the coordination sphere, in both coordination sphere, where the change in the isomerism or ionization of this compound one, यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। सेकंड में एग्जांपल देखिए, टेट्राअमाइन क्यूप्रेट, टेट्राअमाइन क्यूप्रेट एंड टेट्राक्लोरोप्लैटिनम। यहाँ पे कॉपर के साथ NH3 है, कॉपर के साथ कौन सा ग्रुप है? NH3। यहाँ प्लैटिनम के साथ क्लोरीन है। यहाँ पे कॉपर के साथ NH3 था तो ये नेगेटिवली चार्ज कैटायन बन गया, और एक प्लैटिनम के साथ एनायन है तो ये बन गया एनायन। यहाँ पे प्लैटिनम के साथ NH3 है, कौन सा है? NH3, ये बन गया कैटायन, ये क्या बन गया? कैटायन। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर के साथ है Cl ग्रुप है, ये बन गया आयन। आयन राइट साइड को लिखते हैं, कैटायन पहले साइड को लिखते हैं, आपको पता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिफिक पहले लिखेंगे, बाद में नेगेटिवली चार्ज स्पेसिफिक लिखेंगे, दैट इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो गया? प्लैटिनम के साथ क्लोरीन था या प्लैटिनम के साथ NH3। पहले इसमें जो एनायन था, दूसरे इसमें कैटायन है। यहाँ पे कॉपर के साथ NH3 था, यहाँ कॉपर के साथ क्लोरीन है। यहाँ कॉपर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है कैटायन था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी आयन बन गया। दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है? यहाँ का लाइगेंड यहाँ पे जा रहा है, यहाँ का लाइगेंड यहाँ पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो दैट
Such a type of isomer is called as coordination isomer, and this property of this coordination compound are said to be the coordination isomerism. यहाँ पे हमने तीन टाइप अभी तक देखे हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सो दैट इट हैज डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. यहाँ पे चार टाइप देख रहे हैं. आइसोमेरिज्म के दो टाइप थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा और कॉन्फिगरेशनल भी कहा. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखा है, हाइड्रेट जो सॉल्वेंट भी बोलते हैं उसका आइसोमेरिज्म देखा है, और तीसरा टाइप का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे देखा है. अब यहाँ पे लास्ट टाइप का लिंकेज आइसोमेरिज्म. एंड लिंकेज आइसोमर और आइसोमेरिज्म generally shown by the compound which has ambident type of ligand. Ambident type of ligand. कौन से टाइप के ligand होना है चाहिए? ambident. और आपको पता है कि ambident ligand यानी क्या होता है, जहां पे जो डोनर आइटम रहता है, दैट इज ligand के पास कितने डोनर आइटम रहेंगे, कम से कम दो डोनर आइटम रहेंगे. दो टाइप के डोनर आइटम रहने चाहिए. There are two donor sites are present in the ligand so as to donate the lone pair of electron toward the central metal atom. एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एक एटम के साथ, दूसरे कंपाउंड दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. यहाँ पे पहले भी देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम ये आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज पेंटामाइन. यहाँ पे आपको पता है NO2 ग्रुप है, NO2 के पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, दिस कंपाउंड, दिस एम्बेडेड टाइप ऑफ ligand, दैट इज it has two donor sites, nitrogen and oxygen. कौन सा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू डोनर साइट्स. नाइट्रोजन की तरफ से भी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है विद द सेंट्रल मेटल एटम. सो दैट यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के साथ हो गया तो क्या होगा, पेंटामाइन नाइट्रेटो. क्या हो गया, पेंटामाइन नाइट्रेटो. हमने नॉमेनक्लेचर देखा है, पेंटामाइन नाइट्रेटो. नाइट्रेटो के बाद हमने क्या करना है, डैश करना है. अगर नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे तो पेंटामाइन नाइट्रेटो यन कोबाल्टेट. यन क्या हो गया, कोबाल्टेट. बाद में उसकी क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है. सेकंड केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम. तब क्या होगा, इसका नाम कैसे होगा, पेंटामाइन नाइट्रेटो डैश करके वो लिखना है. दैट इज नाइट्रेटो के बाद वो, यहाँ नाइट्रेटो के बाद यन, यानी कि हमको यहाँ पे डोनर आइटम हमको यहाँ पे दिखाना है. और डोनर आइटम दो साइड टाइप के रहे तो क्या बोलेंगे उसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म और आइसो एम्बेडेड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, वेयर देयर आर टू डोनर साइट्स आर प्रेजेंट to donate the lone pair of electron toward the central metal atom. अब ऐसा ही दूसरा एक कंपाउंड है NCS और SCN, that is the thiocyanate and isocyanate. thiocyanate and isothiocyanate. अब दूसरा बताएं कि साइनाइड है खाली और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसो. This such a type of ligands if present in the coordination sphere, this such a type of ligands are coordination compound are said to be the linkage isomerism, and phenomena is said to be the linkage isomerism. These are the different types of isomers related to the structure of compound, coordination compound, that is ionization isomerism, hydrate or solvent isomerism, coordination isomerism and linkage isomerism, which is change in the physical and chemical properties are
that is physical and chemical properties are affected by this such a type of arrangement. What is my isomer? The compound which have same molecular form. आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी की तरफ molecular formula कैसा था? Same था. खाली क्या बदल रहा है? Different spatial arrangement. Arrangement बदल रहा है, rearrange हो रहा है, exchange हो रहा है of atom, so that they gives different and physical and chemical properties. I consider, I hope you will आपको समझ में आया होगा पूरा. You understand this concept. I hope you understand this concept. Next video में हम देखेंगे कि what is meant by stereoisomerism and both different types of geometrical isomerism and optical isomerism. Thank you.